Good morning, students. Last time we discussed about chemical reactions and equation. Now we discuss balance of chemical reactions. How can balance the chemical reactions? So first we write a word equation: zinc plus sulfuric acid equals to zinc sulfate plus hydrogen. Now this equation can be represented by symbolic. So zinc Zn plus sulfuric acid H2SO4 equals to ZnSO4 plus hydrogen. So first we how to balance. So first rule is that number of element or atoms in reactant is equal to number of atom in product. So first elements, number of atoms in reactant, number of atoms in product. So element zinc, hydrogen, sulfur and oxygen. Zinc, hydrogen, sulfur, oxygen. So zinc, number of zinc atom in reactant. It means हम इसको लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड में इसलिए LHS, या राइट हैंड में इसलिए RHS. So number of atom zinc atom in reactant 1, zinc atom in product 1, hydrogen atom in reactant 2, hydrogen atom in product 2, sulfur atom in reactant, sulfur atom in reactant is 1, sulfur atom in product is 1, oxygen atom in reactant 4, oxygen atom in product 4. So the number of atoms in LHS is equal to the number of atom in RHS. So this reaction is balanced chemical equation because the number of atoms are same in reactant or product. If the number of atoms in reactant or product are not same, then this is called unbalanced equation. So we require to balance these unbalanced equations. So first example is clear. Now second. Fe plus H2O equals to Fe3O4 plus H2. Okay. So elements the number of atoms in reactant, it means LHS, the number of atoms in product, it means so element is Fe, hydrogen, oxygen. Number of atom in reactant 1, number of atoms 1, number of hydrogen 2, number of oxygen 1, number of atoms in product Fe 3, hydrogen 2 and oxygen is 4. So here we require a balanced chemical equation because the number of atom in reactant or number of atom in product are not same. Number of atoms in reactant and number of atoms in product are not same, so we require balanced chemical equation. So how can we balance a chemical equation? So first, so number of atoms reactant और नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में दोनों की अमाउंट इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट थिंग. दूसरा हमें क्या करना है कि जो एटम्स के नंबर ऑफ मोल्स हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं. इट मींस हम इसके आगे कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई चेंज नहीं कर सकते. यहाँ जो ये 3 है, 4 है, ये 2 है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते. हम सिर्फ क्या करेंगे, इसके आगे नंबर लिखेंगे 2, 3, 4 जो भी, उस टाइप से हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे. तो फर्स्ट देखो इसमें सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे. सबसे पहले फर्स्ट वी स्टार्टेड फ्रॉम
द एटम्स विच हैज लार्जर अमाउंट। सो इसमें से जो भी एटम्स लार्जर अमाउंट में होगा, जैसे इसमें हम बात करें Fe1 है, अब देखा जाए तो इन सभी में से जो ऑक्सीजन है वो आपका क्या है, सबसे ज़्यादा अमाउंट है ऑक्सीजन 4 है, बाकी एलिमेंट 3 है 2 है। सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, सबसे पहले हम उसको बैलेंस करते हैं जिसकी नंबर ज़्यादा होती है। तो नंबर ज़्यादा है किसकी, ऑक्सीजन की, तो फर्स्ट वी बैलेंस फ्रॉम ऑक्सीजन। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, टेक द स्क्रीनशॉट नाउ। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, पहले तो इसको ब्रैकेट बॉक्स के अंदर लिखेंगे क्योंकि हमें इसमें कोई चेंज नहीं करना है। इसको पहले हम बॉक्स में लिखेंगे कि इसके अंदर हमें कोई चेंज नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप यहाँ लिख देते हैं हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पर एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। यहाँ पर हम RHS लिखेंगे और यहाँ से हम बोलेंगे LHS। सो पहला नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन यहाँ पर पहला हमने बात की ऑक्सीजन की, ठीक, एलिमेंट ऑक्सीजन हमारा। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स इनिशियल में कितने लेंगे, आ लेंगे इनिशियल, यहाँ पर 2 बैलेंस, इनिशियल 2 बैलेंस। तो इनिशियल में नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन कितने, इनिशियल में देखा जाए तो इनिशियल में कितने, यहाँ पर 4 इन, पहले यहाँ पर इनिशियल में 1, H2O में 1 है, रिएक्टेंट में H2O है, इट मींस 1 ऑक्सीजन है, तो वहाँ पर 1 ऑक्सीजन है किसमें, H2O में। फाइनल हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, Fe3O4 है। Fe3O4 में अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन कितने, यहाँ पर ऑक्सीजन की अमाउंट 1 है, यहाँ ऑक्सीजन की अमाउंट 4 है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे इसको क्या करना है, बैलेंस करना है, तो मुझे इस 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 1 × 4 = 4। सो यहाँ पे क्या रहेगा 4। तो हमें जो भी H2 है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को हमें सेम करना है, ऑक्सीजन को सेम करना है, तो फिर क्या करेंगे हम कि यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा वो रहेगा आपका Fe, तो सेम रहेगा, H2O में हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई, तो 4H2O, यहाँ पर Fe3O4 वैसे ही रहेगा, और H2 जो आपका है वो वैसे ही रहेगा। अब हमने पहले स्टेप में क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने बैलेंस कर लिया ऑक्सीजन को, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर जो जिसके नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होते हैं सबसे पहले हम उसको बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स इज ग्रेटर, सो फर्स्ट वी बैलेंस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर 1 है, इसलिए यहाँ 4 से हमने मल्टीप्लाई करके दोनों साइड 4 ऑक्सीजन कर लिए। क्लियर। अब नेक्स्ट इसी में चेंज कर लेते हैं, इनिशियल एटम एलिमेंट्स ऑफ से थर्ड में Fe देखते सबसे ज्यादा Fe है, तो एलिमेंट ऑफ आयरन इनिशियल में कितना है 1, फाइनल में कितना है 3। क्या करना पड़ेगा, टू बैलेंस के लिए यहाँ पर 1 ने 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3Fe हो जाएगा, यहाँ पर तो 3 है। तो सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 3 से किसमें, Fe में, तो दोनों से नंबर ऑफ आयरन सेम हो जाएगा। तो हम सेकेंड, ये फर्स्ट स्टेप का था, सेकेंड स्टेप में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया Fe में, 4H2O, यहाँ पर आपका Fe3O4 रहेगा, लास्ट में हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पर क्या क्या बैलेंस है आपके पास, ऑक्सीजन बैलेंस है, आयरन बैलेंस है, लास्ट फाइनली बैलेंस करना है आपको हाइड्रोजन। तो इसी में हम लिखेंगे स्टेप थर्ड, एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन। एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन इनिशियल में कितने आपके पास, H2O में 2, यहाँ पर आपका 2, इस फॉर्मूले में यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर इनिशियल में कितना हो रहा है, यहाँ पर आपका H2O, यहाँ पर इनिशियल में हो रहा है 4, आपका 4H2O। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो रिएक्टेंट में हमारे पास कितना हो रहा है 4,
बैलेंस करने वाली रिएक्टेंट में कितना है 4:2 और प्रोडक्ट में कितना है सिर्फ 2:2, इतनी हम बोल सकते हैं 2। सो कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पर हमें ये तो 4 है, यहाँ पर हम अगर इसको काउंट करते हैं 1 मोल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 मोल से, अगर हम मोल्स की बात करते हैं तो 1 मोल से, और एटम्स की बात करेंगे तो यहाँ पर तो अगर हम एटम्स की बात करते हैं तो यहाँ पर कितने एटम्स हैं, यहाँ पर 2 एटम्स, और यहाँ पर एटम्स की बात करेंगे तो कितने एटम्स हैं, यहाँ 4 2 जा 8 एटम्स है, तो 8 एटम्स है, यहाँ पर 8 रहेगा, यहाँ पर 2 है, तो 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना आएगा 8, तो ये बैलेंस हो जाएगा। इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, जो हमारे पास प्रोडक्ट है यहाँ पर 4:2 हुए, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा 4 2 जा 8:2 है, तो यहाँ पर 8 करने के लिए मुझे यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और फाइनली हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास कितने 3Fe है, यहाँ भी 3 है, ऑक्सीजन कितने हैं 4, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की तो 4 2 जा 8, तो यहाँ पर 4 2 जा 8, ये क्या हो जाएगी आपकी केमिकल रिएक्शन बैलेंस होगी। और फाइनली बैलेंस करने के बाद हम उसका सिंबल लिखेंगे, जैसे Fe है तो Fe किस फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में, H2O जो है आपका वेपर या गैस फॉर्म में होगा तो G लिखेंगे, यहाँ पर Fe3O4 जो भी सॉलिड फॉर्म में रहेगा, जो हाइड्रोजन है वो किस फॉर्म में रहेगा, गैस फॉर्म में, तो G। तो फाइनली बैलेंस करने के बाद उसका हम सिंबल लिखेंगे, कौन सी स्टेट में पाया जाता है, अगर वो गैस है तो G लिखेंगे, सॉलिड स्टेट में है तो हम लिखेंगे S, और अगर वो किसी आपका वेपर स्टेट में तो V, या तो आप V लिख दो या फिर G लिख दो। सो ये आपका बैलेंस करने का तरीका, किसी भी इक्वेशन को हम बैलेंस इस टाइप से कर सकते हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसका CH4 प्लस O2 इक्वल्स टू CO2 प्लस H2O प्लस NaCl। यहाँ पर हम देखो डायरेक्ट बैलेंस करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, तो कार्बन बैलेंस। सेकेंड देखो नंबर ऑफ सबसे ग्रेटर क्या है, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास 2 है, तो फर्स्ट सबसे पहले जो ग्रेटर होता है उसको बैलेंस करते थे। यहाँ पर 4 है तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन बैलेंस है। नाउ नेक्स्ट में कार्बन देखो आप, कार्बन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। यहाँ पर टोटल कितने ऑक्सीजन है 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन यहाँ हो गए आपके 4। सो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 2 जा 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 2 जा 4 ऑक्सीजन, कार्बन सिंगल सिंगल कार्बन, तो बैलेंस हो गई। तो किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड में जितने एटम्स होंगे राइट हैंड में उतने ही उसके एटम्स होंगे, जब दोनों साइड एटम्स इक्वल हो जाएंगे तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो हमें क्या करना है, टाइप्स पढ़ने से पहले आपके कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन हो सकती हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, डबल डीकम्पोजिशन है, ये सारी रिएक्शन हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट उसमें आती है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मीन्स क्या, कंबाइन करना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इट मींस कंबाइन करना, हमें क्या करना है रिएक्शंस को कंबाइन, रिएक्टेंट को कंबाइन करना है। तो हम पहले एक एक्टिविटीज पे डिस्कस करते हैं। टेक अ बीकर, एक बीकर लेंगे, उसके अंदर क्या करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे, इसको बोलते हैं क्विकलाइन। टेक अ बीकर एंड टेक quicklime in this beaker and filled with water। और हम उसमें क्या करेंगे, वो ऊपर से पहले बीकर लेने के बाद हम क्या करेंगे उसमें कैल्शियम ऑक्साइड टेक करेंगे, ऊपर से हम क्या करेंगे उसके अंदर वाटर को उसके अंदर डालते हैं। अब होगा कि इसमें आपको ऑब्जर्व करना है कि जो बीकर इसका क्या हुआ, बीकर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, तो आपको टच करके फील करना। जैसे आपने क्या किया, इस वाटर के अंदर
कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर इसमें से H2O रिएक्शन होगा, क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है उसको क्या बोल सकते हैं, क्विकलाइम, वाटर इक्वल्स टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं स्लैग लाइन, स्लैग। अब इस रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं, इस रिएक्शंस में देखते हैं तो रिएक्टेंट कितने यहाँ पर, रिएक्टेंट्स 2, नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितना है यहाँ पर, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स 2, प्रोडक्ट यहाँ कितना है, सिंगल प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट 1। तो यहाँ हुआ क्या, जो कैल्शियम ऑक्साइड है कंबाइन हो रहा है वाटर से, क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इट मींस जो आपके रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहा है और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इट मींस क्या, दोस रिएक्शन इन विच reactant combine to form, when reactant combine to form a single product is called combination reaction. Those reaction in which one or more reactant, it means one से more तो हो, कंपल्सरी कि भाई वन से ज्यादा तो होगा, तो it means two or more reactant combine to form a single product is called combination. यहाँ पर दो reactant कितने, दो कंबाइन हुए, क्या बनाया, सिंगल प्रोडक्ट। तो दो रिएक्टेंट हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं, तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो दोस रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या हो रहा है, जनरली हीट बाहर निकल रही है, तो हीट अगर बाहर निकलती है तो ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Those reaction in which heat is evolved, those reaction in which heat is evolved is called exothermic reaction। ऐसी रिएक्शंस इनमें से हीट क्या होती है, बाहर निकलती है, उनको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि आप क्या करते हो, क्विकलाइम, जो आपके पास क्विकलाइम, आप जैसे उसको वाटर के अंदर डालते हो, वैसे क्या होता है, एकदम से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इनमें से हीट बाहर निकल रही है, उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो हमारा रेस्पिरेशन है, जो हम क्या करते हैं, जो हम फूड अंदर लेते हैं, उस फूड का क्या होता है, वो जाके ब्रेक डाउन होता है, जो आपका जनरली फूड क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होगा किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। जो आपका ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन से कंबाइन होगा, ऑक्सीजन से कंबाइन होने के बाद हमारी बॉडी में क्या होता है, अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो वो भी क्या, रेस्पिरेशन है, वो भी आपका क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो रेस्पिरेशन है वो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसे हम बात करते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हमने क्या लिया, जो हमारा ग्लूकोज है, जनरली क्या होता है, जो भी हम लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो हम ग्लूकोज की बात करते हैं। ग्लूकोज क्या है, C6H6 C6H12O6, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। हम बात करते हैं कार्बन की, नंबर ऑफ कार्बन, पहले हाइड्रोजन की, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन 12, तो यहाँ क्या आएगा 6 6 2 12, नंबर ऑफ कार्बन 6, तो नंबर ऑफ कार्बन 6, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 6, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन 6 प्लस 12 18, सो यहाँ पर 6 6 2 12 प्लस 6 18, यहाँ पर 6 2 12 प्लस 6 18, नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ भी 18, नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ भी 18, तो बैलेंस है। तो जो हमारा ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या करता है, ये कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और एनर्जी, तो जो एनर्जी है उसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि यहाँ भी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक हो गया, और ये भी कैसी आपका रेस्पिरेशन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, तो हम इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो दोस रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, थैंक यू।